السلام علیکم جناب، آپ کو ہم شام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں شفاعت علی اور میرے ساتھ موجود ہیں مدھیہ نقوی۔ آج ہمارے پاس بہت ساری اہم خبریں ہیں۔ آج فرائیڈے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہونا تھا NCOC کا وہ اہم اجلاس جس پر تمام تو لوگوں کی نظریں تھیں، اور آج کے اجلاس میں فیصلہ ہونا تھا کہ کیا لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے یا نہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے کیونکہ لاک ڈاؤن سے غریب سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن تمام تر شہریوں کو SOPs پہ عمل درآمد ضرور کرنا پڑے گا، ورنہ کہیں ہماری بھی صورتحال بھارت جیسی نہ ہو جائے، کیونکہ اور شفاعت وہاں پہ بہت بری کنڈیشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو دعا ہے بھائی کہ جن ممالک میں بہت پاکستان سمیت جہاں کرونا نے تباہی مچائی ہے، اللہ پاک وہاں پر امن اور وہاں کے لوگوں کو صحت دے۔ بالکل جی، اور بات بڑی درست ہے کیونکہ اس وقت بھارت میں آکسیجن کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اسٹیٹس نے اپنے صوبے سے باہر آکسیجن لے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اسپتالوں کی جانب سے وزیر اعظم کو ٹویٹ کر کے التجا کی جا رہی ہے کہ آکسیجن کے ٹرکس کو آنے دیا جائے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ انڈیا میں لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سسک رہے ہیں، اور اب پاکستان سے فیصل علی صاحب نے جیسے آفر کی ہے کہ وہ 50 ایمبولنس کا ایک قافلہ لے کر انڈیا جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر لوگوں کی مدد کر سکیں۔ سب سے زیادہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت انڈیا میں ہی خراب ہے اگر گلوبلی دیکھا جائے تو۔ اتنی خراب صورتحال امریکہ میں بھی نہیں دیکھی تھی جتنی اب بھارت میں صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جب لاک ڈاؤن اٹھا تو لوگوں نے بھی ماسک پہننا چھوڑ دیے تھے۔ خدا را آپ لوگ بھی، اور آج اسپیشلی تو آج یہ کہا بھی گیا ہے، تلقین کی گئی ہے، آج اسپیشلی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو آپ نے عید کی شاپنگ کرنی ہے نا وہ آپ ابھی کر لیں۔ بعد میں جو آپ جائیں گے بازاروں کا رخ کریں گے، بازاروں میں رش پڑے گا، اور رش پڑنے سے اس کووڈ کو، یہ جو تیسرا ویریئنٹ آیا ہے، جو تیسری ویو آئی ہے، اس کو مزید تقویت ملے گی۔ اور آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، جو تیسرا ویریئنٹ آیا ہے کووڈ کا، یہ گزشتہ سارے ویریئنٹ سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خیر، اس حوالے سے تو بات کریں گی، ساتھ ہی جناب ملکی سیاست میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب اس وقت گھر پہنچ چکے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے شاید کچھ دیر میں میڈیا سے بات چیت بھی کریں، تو ذرا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور ہوشیار بھی ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جی نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر۔ وزیر اعظم کا کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا اعلان۔ شہروں میں فوج طلب کر لی گئی، عید تک آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں، اگر احتیاط نہ کی گئی تو بھارت جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستانی معاشرے میں عورت ہونا زیادہ فائدہ مند ہے یا مرد ہونا؟ دلچسپ سروے رپورٹ جاری، عوام کیا کہتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کچھ دیر بعد۔ بچے کھیل ہی کھیل میں چیزیں منہ میں ڈالتے ہیں، گلے میں کوئی چیز پھنس جانے سے سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد میں ڈاکٹر نے 7 برس کی بچی کی گلے میں پھنسا دھاتی سکہ بغیر آپریشن مہارت سے نکال لیا۔ اور دنیا بھر میں آج کتابوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن کتاب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اور شو میں سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے۔ کرونا کی تیسری لہر بہت زیادہ تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی زمرے میں آج NCOC کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں حکومت کی جانب سے اہم فیصلے کیے گئے۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق کرونا کی بگڑتی صورتحال پر وزیر اعظم نے شہروں میں فوج طلب کر لی ہے۔ فوج طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کرایا جا سکے، جبکہ عید تک آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 5% سے زائد والے علاقوں میں اسکول بند کر دیے جائیں گے۔ افطار کے بعد تمام مارکیٹس بند کر دی جائیں گی۔ شاپنگ کا ٹائم صبح 6 سے شام 6 بجے تک مقرر کیا گیا ہے۔ افطار کے بعد مارکیٹس کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ان فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی SOPs پر عمل درآمد کریں۔ ماسک پہننے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج کوئی SOPs پر عمل نہیں کر رہا۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ اب تک کہتے رہے لوگوں کو SOPs پہ چلو،
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے۔ جو سب سے بڑی احتیاط ہے، جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے۔ کمروں میں جب بیٹھے سب کو ماسک پہننے کی ہدایت، اور اب ہم انفورس کریں گے، یعنی اب ہم اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے۔ ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج۔ چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین، لیکن ان کے اوپر بھی اتنی اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے۔ باقی دنیا میں ساری جگہ شارٹیج ہے۔ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے، پھر بھی یہ 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑنے پہ۔ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی، ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے۔ اور پچھلی باری مجھے 1 سال، آج سے 1 سال یاد ہے، اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب بالکل ایس او پیز پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی اب عمل کر رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے، شہروں کا لاک ڈاؤن، وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم نے 1 سال پہلے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھا دی تھی۔ اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے، یعنی ہمارے ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی ہوتی جو 1 سال پہلے تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے۔ قوم اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد کرے گی تو لاک ڈاؤن کی نوبت نہیں آئے گی، یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ دوسری جانب این سی او سی کے سربراہ اسد عمری کہتے ہیں کہ کورونا کے پھیلاؤ کے باعث وفاقی حکومت نے سخت پابندیاں عائد کی ہیں، شہری عید کی شاپنگ آخری دنوں کے بجائے ابھی کر لیں، بیماری پھیلنے پر لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، اور جو بازار ہیں یہ شام 6 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ اسد عمر صاحب کا کیا کہنا تھا، یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ آگے خدشہ نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہمیں شہر کا بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے۔ سی او سی کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر صوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے۔ تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے، وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی۔ 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے، اس کے بعد وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار الاؤ ہوگا۔ اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری 3 دن اور 5 دن کا نہ انتظار کریں، اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے۔ انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، عید تک جو ہے آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ٹیک اویز الاؤڈ ہوں گے، انڈور جمز ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آفس ٹائمنگز ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے۔ جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر۔ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی، ہم اس کے 90% کے اوپر جا چکے ہیں۔ تقریباً 80% جو اس وقت آکسیجن ہے صحت کے لیے، اور کورونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے۔ آکسیجن کی سپلائی کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد، اور باہر سے بھی اگر ہمیں درآمد کرنی پڑے تو آکسیجن کا انتظام بہتر کیا جائے۔ اگلے 1-2 دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے، جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کی کوارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک مربوط نظام بنایا جائے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا اسد عمر صاحب نے جو کہا اور وزیر اعظم عمران خان نے جو کنسرن کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نے پہلے بھی کورونا کو زیادہ سیریس نہیں لیا، اور اب بھی کوئی زیادہ امکان نہیں ہے کہ وہ کورونا کو سیریس لیں گے۔ عجیب و غریب قسم کی کانسپریسی تھیریز ہیں جس پہ لوگوں نے یقین کیا ہوا، اور اسی کی بنیاد پہ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، تہیہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ماسک نہیں پہننا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ فوج بلانے کے فیصلے سے کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ بہت شکریہ شفاعت۔ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی کہا کہ کوئی بھی حکومت یہ اکیلے جنگ نہیں جیت سکتی، کسی حد تک اونرشپ عوام کے پاس ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور عوام کو اس وقت، کیونکہ یہ مہینہ بھی ایسا ہے رمضان کا اور بعد میں عید ہے، تو ظاہر ہے اس میں سموسے، پکوڑے اور دہی بڑے ان کی دکانوں پہ ہجوم میں بدتمیزی ہوتا ہے۔ اور لاہور میں تو ہمیں پتہ ہے کہ مذہبی جماعت کا جو مسئلہ ہوا اس سے بہت زیادہ ٹرانسمیشن بڑھی، کیونکہ وہ تو سوشل فزیکل ڈسٹینسنگ نہیں، وہ تو گتھم گتھا ہوئے اور لڑائیاں ہوئیں۔ یہ واقعی بڑی سنجیدہ صورتحال ہے۔
डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अगर अवाम SOPs पे अमल दरामद नहीं करती तो जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में सूरत हाल जिस तरीके से कशीदा होती चली जा रही है, खुदा ना करे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मदिया, और इसमें दो इसकी वजूहत हैं। एक तो जो अपनी साख्त बदल रही है वायरस, खास कर ये जो डबल म्यूटेंट अभी भारत का है, कोशिश तो ये होती है कि वो हमारे मुल्कों में ना आए, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नाकाम हुए, पूरी दुनिया नाकाम हुई। जब ये बीमारी वुहान में आई तो वुहान से फैल के पूरी दुनिया में गई, हालांकि कोशिश की गई कि इसको रोका जाए। अब म्यूटेशन का भी यही है कि ये डबल म्यूटेंट जो भारत का है ये बहुत डेंजरस म्यूटेंट है, क्योंकि इससे इसका फैलाव भी बढ़ेगा और इसकी विरुलेंस यानी कि इसका डैमेज भी बढ़ेगा, और हमारी जो ट्रैफिक है ये UAE के जरिए भारत के काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और फिर हमसाया भी है और बहुत बड़ा बॉर्डर है, इसलिए भी करनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अब तो देखिए वैक्सीन का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ की वैक्सीन भी पाई जा रही हैं। सो क्या इन वैक्सीन से जब नया वायरस आ गया है उससे इम्यूनिटी मिल पा रही है? आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए ये अभी टू सून टू कंक्लूड। हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि हमारी जो वैक्सीन हैं ये इफेक्टिव रहीं, और इस सिलसिले में हमने कल एक स्टडी शुरू की है कि जिनको भी हम PCR कर रहे हैं उनके साथ NGS कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ताकि हमें एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड पता चले कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन कितना है, B117 तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इसी तरह जो हमारे बाकी स्ट्रेन हैं जैसे ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है ये कितने हैं और उनका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं, क्योंकि हम वैक्सीन के ट्रायल कर रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि वैक्सीन इफेक्टिव हैं, लेकिन वैक्सीन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो 100% प्रोटेक्ट करेंगी, ये तो कोई भी वैक्सीन नहीं कर रही। मैक्सिमम वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं सीरियस डिजीज से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीमारी से इतना नहीं प्रोटेक्ट करती वो आपको। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे जनाब वैक्सीन शायद आपको बीमारी से 100% तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं करेगी, लेकिन अस्पताल और क्रिटिकल इलनेस में गिरने से 100% तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगी। लिहाजा जिंदगी अगर अजीज है तो वैक्सीन की तरफ ज़रूर जाएं और फ़ौरन से पेशतर जाएं, क्योंकि जैसे पूरी दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी सूरत हाल सामने आ सकती है। और भारत की मिसाल तो आपके सामने है, जो भारत में कोरोना ने तबाही मचाई है। सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो चुकी है कि 3,32,502 नए केसेस एक दिन में सामने आए हैं और मजीद 2256 अफराद कोरोना से हलाक हो गए हैं। नई दिल्ली में मुंबई के अस्पताल मरीजों से भर गए हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, मरीज हम देख रहे हैं सड़कों पर तड़प रहे हैं, और रिकॉर्ड हलाकतों की वजह से शमशान घाट और भारत के जो कब्रिस्तान हैं वो भी अब भर गए हैं। कोरोना वायरस से बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद IPL मैचेस जारी हैं। साबिक भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के कीपर MS धोनी के वालिदैन भी कोरोना के बायस अस्पताल दाखिल हैं। मुश्किल वक्त में एधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने भारत को 50 एम्बुलेंस फराहम करने की पेशकश कर दी है। एधी फाउंडेशन के सरबराह ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जो इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के हवाले कर दिया गया। और इस खत में भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और अमवात पर दुख का इजहार भी किया गया है। साथ में फैसल ईदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के इन मुश्किल हालात में भारतीय आवाम की मदद के लिए तैयार हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर, ऑफिस और सपोर्टिंग स्टाफ मुआवनत करेंगे। भारतीय हुकूमत की तजावीज़ के मुताबिक एधी टीम किसी भी हसास इलाके में काम कर सकती है। और बहुत ही गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल भारत में मुसलसल हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से अब केसेस बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद ही नहीं है, सब ऑक्यूपाइड हैं। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से हर भारतीय एक मशहूर शख्सियत की जानिब से कॉल्स की जा रही हैं, लोगों की मिन्नतें की जा रही हैं कि अगर किसी के पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है तो उनके फ़लाँ मरीज़ को या फ़लाँ अस्पताल में प्रोवाइड कर दिया जाए। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन, और हमारा दिल उन तमाम लोगों के लिए रंजीदा है जो सूरत हाल से दूर, और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। और अभी हम आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल हो गई। हर मर्दान में
कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह भी अब तक सबसे ज्यादा है और ये शरह है 51%। दीलवर में 45, मालाकंड में ये शरह 24%, जबकि पेशावर और करक में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 22, जबकि 4 सदा और सवात में केसेस मस्बत आने की शरह बिल तरतीब 18 और 19% है। अजीब व गरीब बात है कि मर्दान में हर दूसरा किया जाने वाला कोविड टेस्ट पॉजिटिव है। ये बताता है कि तकरीबन पूरे शहर को कोविड वायरस फैल चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में अभी तक एहतियात का मामला नहीं आ रहा सामने। उम्मीद करते हैं जनाब कि अब नए SOPs के इतलाक के बाद लोग एहतियात करेंगे। मर्दान में जैसे कि हमने कल भी आपके सामने जो सूरत हाल रखी थी कि तकरीबन 85% वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा अस्पताल ऑलरेडी मौजूद है जो कि मर्दान में इस वक्त कोविड से रिलीफ के लिए काम ये कर बात भी याद रखी जाए कि खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें अब तक सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जाँ भाग हो चुके हैं। वो डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, वो डॉक्टर्स, हम लोग तो कोरोना से छुप के घरों में बैठ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स इस बिगड़ती सूरत हाल में इनके पास और कोई चारा नहीं सिवाय ये कि वो आपका ख्याल रखे। 62 से जायद डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से फाइट करते हुए शहीद हो गए हैं। आपको अब लिए चलते हैं मरीज, जहां पर कोसार यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इन मसाइल के अजाले के लिए अब कोटली सतिया को मरी की तर्ज पर सियाहती तौर पर मरकज़ के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिससे सियाहत को फ़रोग मिलेगा और इलाका में तरक्की और खुशहाली आएगी और मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत न सिर्फ मर्री बल्कि इसके गिरदो नवाह में सियाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है, बल्कि इस इलाके के बासियों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल हल करने के लिए पुरअज़म भी है। मर्री के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा गया है। इसके साथ नए तरक्याती मनसूबे भी लाए जा रहे हैं। टूरिज़म के फ़रोग के लिए मर्री के तरक्याती मनसूबों पर मजमूई तौर पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से न सिर्फ सियाहों को बल्कि मर्री के रिहायशी अवाम को भी सहूलत मैसर होगी। सियाहत हमारा बुनियादी फोकस है और सियाहत और इसे मुतल्लिका अलूम के डिसिप्लिन के लिए मर्री में कोसार यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक स्टडी सेंटर के क़याम के मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया गया है, जहां टूरिज़्म और कैरियर डेवलपमेंट मैनेजमेंट की क्लासेस दी जाएंगी और इसके साथ साथ तहसील कहूटा, कोटली सतिया और कलर सईदा के बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेजेस की भी अपग्रेडेशन की संग बुनियाद रखी गई है। मजमूई तौर पर 1 अरब 13 करोड़ 95 लाख रुपए लागत आएगी और आवाम के पुरजोर इसरार पर मर्री म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा भी दे दिया गया है। इसको इंतज़ामी तौर पर बेहतर करने के लिए भी प्लान बनाया जा रहा है। मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तहसील मर्री की तारीख में नए बिल्डिंग लाज नाफिज किए जा रहे हैं और नई तामीरात पर पाबंदी भी उठा ली गई है। मर्री के पहाड़ी इलाकों के आवाम के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना हमारी तरजीहात में शामिल हैं। कहूटा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी को अपग्रेड किया जा रहा है। असम्बली सेमिटोरियम को भी अपग्रेड किया जा रहा है और डायलिसिस यूनिट और ट्रामा सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। मर्री में सियाहों की पार्किंग का भी बहुत बड़ा मसला है। सियाहों की सहूलत के लिए झींगा गली में PPP मोड पर पार्किंग प्लाजा भी बनाया जा रहा है और जहां पे रोड साइड पार्किंग की वजह से सियाहों को कई किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मर्री और इसके मज़ाफ़ात में पानी की फराहमी और इसके निकास का मसला काफ़ी अरसे से हल तलब है और इसी तरह ट्रैफिक का मसला भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनांचे यहाँ के आवाम और सियाहों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए टूरिस्ट हाईवेज़ और फराहमी व निकासी आब के प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। हमारी तवज्जो मर्री के मज़ाफ़ाती इलाकों की सहूलतों की फराहमी पर है ताकि इन्हें सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की दी जा सके। इस विजन के तहत फराहमी व निकासी आब के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और नए टूरिस्ट स्पॉट न्यू डार जावा वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे।
ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर करने के लिए धनोई, तन्नाड़, पंजपीर पहाड़ों से राब्ता सड़क भी बनाएंगे। इसके अलावा टूरिस्ट हाईवे भी बनाई जाएंगी, जिसमें लोअर टोपा मरी, बोस्तानाबाद जैसी रोड्स भी शामिल होंगी। मरी के दाखिली और खारजी रास्ते ट्रैफिक के लिए नाकाफ़ी साबित होते हैं। चुनांचे टूरिस्ट एरिया में ट्रैफिक की आसानी से आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए दाखिली और खारजी रूट बेहतर बनाने की तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए भी काम हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में हम रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों के लिए मज़ीद तरक्याती मंसूबे लाएंगे। हर ज़िला के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज तरतीब दिया जा रहा है। हमारा मिशन आवाम की खिदमत और फलाह व बहबूद है और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम अपने मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त कोसार यूनिवर्सिटी मरी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी आए और उन्होंने यहाँ पर कोसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया और साथ में इस कोसार यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह करने का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि यहाँ पर इससे सयाहत के हवाले से भी इस पर काम किया जाएगा, सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से भी इस पर काम किया जाएगा, टूरिज़्म बढ़ाने के हवाले से काम किया जाएगा, इफ़रादी क़ुव्वत को उठाने के हवाले से यहाँ पर काम किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि यहाँ के रहने वाले भी जो मकीन हैं उनको भी एम्पावर किया जाए। जैसे हमने कल भी देखा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने माहीगीरों के हवाले से भी एक प्लान का ऐलान किया जिसमें उनको भी एम्पावर करने का ऐलान किया गया। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वैसे मैंने नई रेसिपीज ट्राई की हैं। दही बड़े पे तड़के का मैजिक, कॉर्नफ्लेक्स स्पाइसी चिकन और स्पैगेटी। जहाँ ममता वहाँ डालडा। रमजानुल मुबारक में डालडा की पूरी रेंज पर पाएं 100 रुपए तक की बचत। इनके खानों के लिए मेरी चॉइस है KNN's मुज़ेरे सेहत अज्जा से पाक चिकन। वैसे अपने खानों में हम औरतें एक चीज जरूर मिलाती हैं, प्यार है ना? Safe and healthy chicken, KNN's। जिसने पाया है इस बार रमजान, शुक्र करता रहे वो मुसलमान। रहमतों नेमतों से भरा घर मेरा रब दे रहा है सजा कर। इस महीने की शान मुबारक हाशमी की तरफ से रमजान मुबारक। हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं अब्बू के। अब हर दिन यही फिक्र सवार रहती है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। द किडनी सेंटर में इस वक्त सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से बेशतर इसका महंगा इलाज कराने से कासिर है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात द किडनी सेंटर को दें और मरीजों और उनकी फैमिलीज के लिए सेहत की रोशन उम्मीद बने। DHA मुल्तान में रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी और सेक्टर यू में भी 10 मरला प्लॉट्स की पोजीशन का आगाज कर दिया गया है। गोल्फ कोर्स का भी बहुत जल्द आगाज। ये है मेरी लाइफ का होल इन वन। DHA मुल्तान। कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, हड्डियों में जान है, तभी तो दिल जवान है, कहने को अम्मी जान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के आपको लेके चलते हैं मरी, जहां वजीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले कोसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है। इस वक्त वजीर आज़म का खिताब आपको सुनवाते हैं। माशाल्लाह बड़े जज्बात में आपने की और मुझे समझ आती हैं जज्बात, क्योंकि आपके इलाके के अंदर ये बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं और ये मैं उस्मान बुज़दार आपको
آپ کو بھی اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس علاقے میں ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں. زیادہ سے زیادہ جس طرح ابھی صداقت نے بتایا کہ وہ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی، اور اس میں آ کے وہ رہ لیتے تھے اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا. 62 کروڑ نہیں صداقت، 83 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے. تو کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ اب عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں، جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں. پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی آبادی بڑھ چکی ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے. ایک چھوٹا سا نتھیا گلی میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ٹائپ، جس میں ایک ہے چھوٹا سا، لیکن وہ ایک ڈاکٹر وہاں، اور اتنی ٹورسٹ بھی آتے ہیں، اور اب اتنا زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ آبادی ہے، تو اس کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا. تو یہ بڑا اچھا کیا کہ 370 کنال کے اوپر، اور وہ بھی اس علاقے میں 370 کنال ہونا بہت جگہ تھی. تو شکر ہے کہ کسی نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک جنرل ہاسپٹل بنے جو عوام کی خدمت کرے. تو یہ میں اگر صداقت آپ کی یہ سوچ تھی تو میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس میں کسی نے سوچا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عوام کی، دیکھیں عوام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے، پھر ان کے لیے تعلیم دے، کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کو کتنے ساری دہاڑی میں پیسے ملتے ہیں، اور اسی کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، اس کو کوئی ہنر سکھا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. اور جتنا آپ ایک انسان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں، وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے. اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اب تو ایسے کورسز ہیں کہ بنیادی تعلیم ہو بچے کو میٹرک کی، تو اس کو اب 6 مہینے کا کورس کروا دیں تو وہ ایک دم اپنے گھر اور اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروائی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے. قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے. جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے. اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی امت تھی. تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکے کا قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے، اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس جا سکتا ہے. تو ایک بڑی سوچ، ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی، آگے کا سوچ رہا تھا. وہ اپنی ایک قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے. تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی. تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے. اب جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے. میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا. تقریباً سارے علاقوں میں جا چکا ہوں، قبائلی علاقے سے سارے پہاڑی علاقے، سارا سندھ، پنجاب، بلوچستان کے کئی علاقوں میں نہیں گیا، لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے. لیکن بلوچستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے. دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بخشی ہیں ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں، کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی. جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے، وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور لگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے
اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں. ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا. لیکن ہم نے کیا ہے؟ صرف ٹورزم کروا کے آ کے مری میں آ کے بس یہاں رک جاتی تھی ہماری ٹورزم. وہ مری کی اتنی زیادہ آبادی، میں جب یہاں بچپن میں آیا کرتا تھا، وہ مری کیا تھا اور آج یہ مری کیا بن گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹورزم سپاٹس ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہمارے اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی، یہ سارے ادھر سے اگر آپ پختونخوا کی طرف بھی جائیں اور آپ گلگت کی طرف بھی جائیں، یہ جو سارا اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی بن سکتے ہیں، لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں. کہ جو آتا تھا یہ نتھیا گلی اور گورنر ہاؤس، یا وہ زیادہ سے زیادہ نتھیا گلی گیا اور ادھر کا گورنر ہاؤس. کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک میں کس کس طرح کے ہمارے پاس علاقے تھے. تو اب یہ پاکستان بدلنے والا ہے. یہ سارے علاقے اب ڈیولپ ہوں گے، کیونکہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں ہر سال دگنی ہو رہی ہے ٹورزم. ابھی باہر سے لوگ نہیں آ رہے، اندر سے ہی پاکستان کی ٹورزم تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل فون. جو بھی کہیں جاتا ہے وہ موبائل کی تصویر لے لیتا ہے اپنی، وہ جب وہ اپنی فیس بک پہ لگاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں تو یہ سارا علاقہ کھلنے لگا ہے. اور ٹورزم ایک فیوچر ہے پاکستان کا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں، ہم اپنے بیرونی ملک کے قرضے واپس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب تک ٹورزم کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. میں پھر سے مثال دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی. ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اس کا آدھا ہے سوئٹزرلینڈ، اور اس سے بہت کم خوبصورتی ہے سوئٹزرلینڈ میں ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں. کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں تو آدھے دنیا کے جو 10-12 سب سے اونچے پہاڑ ہیں، آدھے تو ناردرن ایریاز میں ہمارے. تو سوئٹزرلینڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے، ٹورزم کو سائنس بنایا ہے. وہاں اس طرح کی جو ہاسپٹیلٹی، جو ٹورزم کے لیے کورسز ہوتے ہیں، جو آج کوسار یونیورسٹی آپ یہ شروع کر رہے ہیں، اس طرح کے کورسز ہیں وہاں. وہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو. تو وہ ٹورزم سے اب ذرا یہ سن لیں، یا وہ $60 ارب کماتے ہیں یا $80 ارب کماتے ہیں. سوچے 60 یا 80 ارب ڈالر وہ علاقہ کماتا ہے جو آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے. ہم نے ابھی ڈیولپ ہی نہیں کی ٹورزم. نہ ہمیں اندازہ ہے، نہ یہ ہاسپٹیلٹی میں لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو کیسے آپ نے رکھنا ہے، ہوٹلز میں کیسے، یہ جو پوری سائنس ہے یہ. تو یہ بڑا اچھا قدم لیا آج پنجاب گورنمنٹ نے اس علاقے کو، جو صرف اب تک جس طرح صداقت عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر اور بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں مفت ٹھہرتے تھے اور ان کے لیے کروڑ روپیہ خرچ ہوتا تھا ٹیکس پیئر کا. آج اسی کو آپ نے ایک کوسار یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا ہے. اور یہ ادھر سے اب یہ نوجوانوں کو ایسا روزگار ملے گا، بلکہ روزگار ہی نہیں ملے گا، آپ اپنی ٹورزم کے لیے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنا سکیں گے. اور یہ سارا علاقہ اور یہ جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹورزم ٹریل کوٹلی ستیاں تک، اور وہ نیچے یہ بھی بڑا اچھا ایک، کیونکہ آپ ادھر سے پریشر اتاریں گے، نہیں تو سارے لوگ بس یہاں پہنچ جاتے ہیں مری میں. مری اور برداشت نہیں کر سکتا اتنا، یہاں اور ٹورسٹ نہیں آ سکتا. یا جتنی زیادہ پبلک آ جاتی ہے وہ تو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اور ہم ٹورزم کے ڈیسٹینیشن سپاٹس کھولیں. جیسے آپ کوٹلی ستیاں، ادھر بھی میں نے دیکھے بڑے خوبصورت علاقے ہیں، ادھر بھی ہم کھول سکتے ہیں. اور ادھر سے جب ہم شمال کی طرف جائیں گے، آپ ادھر دیکھیں گے کہ ادھر بھی سارا ناردرن ایریاز یا سارا یہ جو پختونخوا جو سارا بیچ میں آتا ہے چترال تک، ہر جگہ کے اندر ہم زبردست اس طرح کی جگہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹورزم صرف ایک ہی جگہ نہ آئے، سارے علاقے میں جائے. اور اب ہم سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، سوات موٹر وے بن گیا، اس سے سارا کھل گیا، وہ سوات سے لے کے پورا آگے تک، اور اب وہ تقریباً چترال تک چلا جائیں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. وہ سب علاقہ اب کھل جائے گا، تو جس سے
सबसे बड़ी चीज कि मुकामी लोगों का फायदा होगा। जो लोगों को रोजगार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, अब इन इलाकों के अंदर उनके लिए आसानी होगी रोजगार लेने के लिए, बल्कि टूरिज्म भी फायदा होगा, उस इलाके को भी फायदा होगा, और सबसे बड़ा रोजगार लेने के लिए मुकामी लोगों को फायदा होगा। और आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो आपने सदाकत बात की कि इमरान इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स इमरान खान ने इकोनॉमिक्स नहीं बनाई, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाई थी। और वो थी क्या? उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने कमज़ोर और गरीब तबके को ऊपर उठा दें तो कौम ऊपर उठ जाती है। उन्होंने ये चीज़ साबित की थी। पहली दफ़ा दुनिया में फलाई रियासत बनाई गई थी। रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर और गरीब तबके की, और जब ये रियासत करती है, अपने कमज़ोर और गरीब तबके की मदद करती है, तो अल्लाह की बरकत आती है उस कौम के ऊपर। फिर अल्लाह, सब कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से, और इज़्ज़त और इंसान को खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमज़ोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पे। जब जितनी मैंने दुनिया देखी है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं, स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं, उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया है, वो अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए, इसलिए वो खुशहाल है। तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है, वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज़्यादा हमारे से आगे निकल गए हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, उन्होंने वो कदम उठाए, जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो कौम उन असूलों पे चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मुझे जो आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाही मची हुई थी। वहाँ पुलिस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे। बड़े कोई 500 पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ दी थी, शहादतें दी थी। लोग पेशावर से उठ उठ के आके इस्लामाबाद में ज़मीनें ले रहे थे। तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो यूनाइटेड नेशंस UNDP ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे ने में सबसे तेजी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था 5 सालों में। और अब जो UNDP की रिपोर्ट आई है, अमीर और गरीब में जो फर्क कम किया गया था वो पख्तूनख्वा में हुआ था उन 5 सालों में, और अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की थी, डेवलपमेंट की थी, वो पख्तूनख्वा ने की थी 2013 के बाद। और यही मेरा मॉडल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कि सारे मुल्क में हम इंशाअल्लाह अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे, इंसानों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हमारा जो मरकज़ होगा, हमारी जो मेन फोकस होगा, वो हमारे लोग होंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग और वो इलाके जो पीछे रह गए हैं। तो उसके अंदर आपके भी इलाके आ जाते हैं, सारा जितना इलाका ये पीछे रह गया, इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है नौकरियाँ लेने के लिए, और यहाँ से नौजवानों को नीचे जाना पड़ता है। तो हमारी अब पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह कि इन इलाकों को हम डेवलप करें, ताकि यहाँ नौजवानों को अपने इलाकों में नौकरियाँ मिले, बजाय उनको अपना इलाका छोड़ के कहीं और दूर जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इमरान खान इस वक्त मरी में कोसार यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के हवाले से खिताब कर रहे थे। कोसार यूनिवर्सिटी के खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि टूरिज्म को प्रमोट करके बड़ा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, और उन्होंने इस हवाले से स्विट्ज़रलैंड की मिसाल सामने रखी। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو شام رمضان میں خواتین و حضرات ہرارے سے خبر آئی ہے کہ میچ پھنس گیا جے خواتین و حضرات پاکستان کی آدھی ٹیم اس وقت پویلین لوٹ چکی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال آپ کے سامنے جناب شام رمضان کے راؤنڈ 2 کی کچھ خبریں رکھنی ہیں۔ بالکل جی، تو جلدی سے ہم نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر، کیونکہ بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ گھر کے حالات خراب ہوئے تو خاتون کی جانب سے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ۔ کراچی کے علاقے گرو مندر میں سوزوکی میں خاتون کی برگر شاپ، کم آمدنی والے طبقے کے لیے سستا زنگر برگر، کوالٹی بھی بہت اچھی۔ حکومت کا عید کے بعد تمام شہریوں کے لیے کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کیے جانے کا اعلان۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ کراچی میں کورونا کی نئی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے بعد اکتوبر میں شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کا انعقاد بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سے 3 ٹیموں کو بھارت میں کھیلنے پر خدشات ہیں۔ ملک بھر میں موسم کا مزاج کہیں ٹھنڈا کہیں گرم، تیز بارش اور ژالہ باری نے اسلام آباد کا موسم تو سہانا کر دیا۔ لاہور میں بوندا باندی سے گرمی کی شدت میں کمی آئی، لیکن کراچی والے ہوشیار رہے، گرمی کا خدشہ ہے۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، اور ٹاپ سٹوریز کے بعد ابھی ہم بات کریں گے ان والدین سے جو کہ اکثر اپنے بچوں کو لے کے جب بچے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے فون میں لگ جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے جو چیز سمجھ میں آتی ہے دیکھ لیتے ہیں، جو کچھ زیادہ سمجھ میں آ لیتے ہیں اس کو منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ کوائن۔ اور شاید ہی شاذ و نادر کوئی ایسا بچہ ہو جس نے بچوں نے ایسی حرکت نہ کی ہو، لیکن کچھ بچوں کی کوائن جو ہے یہ نگل بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سانس کی نالی میں بھی پھنس سکتے ہیں، بچہ بڑا کرب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جی جناب، اور بعض اوقات کھانے کی چیز بھی بچے کچھ زیادہ ایکسائٹمنٹ میں کھاتے ہیں اور اس سے بھی چوکنگ ہو سکتی ہے۔ بہت سارے معاملات آتے ہیں جناب، لیکن عمومی طور پہ یہ کیس بگڑ بھی سکتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو اس میں سرجری تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ حال ہی میں حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر نے 7 سالہ بچی کے گلے میں پھنسا ہوا دھاتی سکہ نکالا، لیکن بغیر آپریشن کا نکالا، اور اتنی مہارت سے نکالا کہ اس کے اوپر ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں جناب کی یہ ویژولز بھی ہم چلا رہے ہیں، ان ویژولز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بچی کو جب آپریٹ کیا گیا تو اس کے بعد وہ بچی اب سٹیبل ہے اور بچی کی خوراک کی نالی سے وہ سکہ نکل گیا۔ ہمارے ساتھ جناب اس حوالے سے اگر آپ بالکل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرم باجوہ صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈائگنوسٹک اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف گیسٹرولوجی لمز جامشور، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ تو سچی معنی میں مسیحا ہیں، بڑے کم وقت میں آپ نے بچی کا ایک ایسی جس بچی تکلیف میں تھی آپ نے بچی کو تکلیف سے نکال لیا۔ ایگزیکٹلی آپ کے پاس کیس آیا کس حالت میں تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ، میں تھینکفل ہوں آپ کا شفاعت اور مدیہ کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ۔ یہ کیس ہمارے پاس پریٹ آباد سے آیا تھا، اور اس کا جو فادر تھا وہ بیچارہ بہت پریشان تھا کہ یہ جو بچی کا سکہ پھنس گیا ہے اور اس کو بچی کو بڑی وومیٹنگ اور سانس میں تکلیف ہو رہی تھی ہمارے پاس۔ تو وہ مطلب ڈے بیفور یسٹرڈے وہ بیچارہ ڈاکٹرز پاس گیا، ڈاکٹرز نے اپنے طریقے سے بڑی کوشش کی، تو فائنلی کچھ پرائیویٹ سائٹ پر گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو اتنی کاسٹ آئے گی آپ کی، کوئی کسی نے کہا 30,000، کسی نے کہا 35,000، اور وہ بہت بیچارہ ہی بات ویری پور۔ تو اس کو جب پتہ لگا کہ ہم نے سول ہاسپٹل حیدرآباد کے اندر، تو میں اف یو الاؤ می دین آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو دی اسٹوری آف اسٹیبلشمنٹ آف دس یونٹ وی آر ڈوئنگ اینڈوسکوپک پروسیجرز۔ تھوڑا سا آپ کو 1-2 منٹ کے اندر بتانا چاہوں گا کہ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل کے اندر کہ میں نے آ کے اس کو گیسٹرو ڈپارٹمنٹ کو جب اسٹیبلش کیا، اور اس میں اسٹیبلش کرنے میں ہمارے وائس چانسلر ہیں پروفیسر بھیکھا رام صاحب اور ستار جتوئی صاحب ڈائریکٹر ایڈمن ہیں، ان کی بڑی فیسلیٹیشن کی انہوں نے مجھے اس کو اسٹیبلش کرنے کے اندر۔ اور یہ اچھی بات یہ ہے سر کہ یہ ایک فیسلٹی اب بن گئی ہے اور اس میں لوگ ٹریٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کس کنڈیشن میں بچے آتے ہیں اور یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جس کے بعد سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر یہ ہمارے والدین کی ایجوکیشن کے لیے جی ہاں، ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ بیسیکلی وومیٹنگ کے ساتھ آتے ہیں، پین کے ساتھ آتے ہیں، اور کہ بعض اوقات تو اگر کافی دنوں سے کوئی ایسی چیز شارپ آبجیکٹ اندر ہے
تو ان کو کالے پھانے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ان بچوں کو. تو ہمارے پاس یہ جو بچے آتے ہیں, یہ جو بچہ آیا ہمارے پاس, تو جب اس کو پتہ لگا کہ مجھے اتنی پیسے اور پھر بچہ پریشان, غریب آدمی, اب کہاں جائے وہ, تو پھر جب میرے پاس پہنچے ہاسپٹل میں. بچے کو کوئی چیز پھنس گئی ہے, ہمارا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے اس کو الٹا کرو اور تھپکی دو, نکل جائے. جی بعض اوقات ہوتا ہے جو ذرا زیادہ قدیم طریقہ ہے کہ بچے کو پیٹ سے پکڑ کے دباتے ہیں, تو اس کا ایک ریفلکس ہوتا ہے اور وہ بچہ کوئی چیز اگل دیتا ہے. کیا یہ طریقہ, کیونکہ ایمرجنسی میں یہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک پرانا طریقہ تھا, اب جو جدید دور ہے, اینڈوسکوپی کا دور ہے, اور اینڈوسکوپی کے ذریعے ہاں گھر سے آپ ہاسپٹل لے آئیں, اس کو 10 منٹ لگیں گے ہمارے پاس سول ہاسپٹل حیدرآباد میں پہنچنے میں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں آپ اگر, لیکن اس میں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں اور اگر وہ نہیں نکلتا اور نکلتے وہ پھنس جاتا ہے ٹریکیا میں, سانس کی نالی میں نکلتے پھنس جائے, تو وہ پھر لائف تھریٹنگ ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. صاحب نے یہ بتایا کہ اگر کسی غلط ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور وہاں پہ مس ہینڈلنگ ہو جائے تو کتنا خطرناک. دیکھیں مس ہینڈلنگ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ٹائم نہیں ہوتا. اگر اس میں مس ہینڈلنگ ہوگی تو ضرور بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال اس میں بغیر ٹائم ضائع کیے اگر کسی نے نگل لیا ہے کوئی بھی ایسی چیز, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس لوکیشن کے اوپر ہے. اگر تو کھانے کی نالی میں تو آئیڈیلی اس کو ودن 6 آورس کے اندر نکلنا چاہیے اس کو, اور میکسیمم اگر آپ اس کو مطلب 6 آورس کے اندر یا میکسیمم 24 آورس. اور اگر وہ میدے میں چلا گیا تو آپ اس کو 24 to 48 آورس 8 آورس تک ویٹ کر سکتے ہیں, یا 2 to 3 ڈیز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اگر ویٹ کریں گے تو کمپلیکیشن شروع ہو سکتی ہے. عید کے دن آنے والے ہیں, جو عید کے دنوں میں نا گوشت تو بھی جگہوں پہ پکتے ہیں. ہمارے یہاں کو آرے سے گوشت کاٹنے کا رواج نہیں ہے, وہ کلاڑے کے گوشت ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں. کسی بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, کھانا کھاتے ہوئے ہڈی پھنس جاتی ہے, فوراً ایک وہ ہوتا ہے کہ جی نوالا کھلاؤ اس کو, بچے کو نوالا کھلاؤ یا جو بھی جس کے بھی گلے میں ہڈی پھنسی نوالا کھلاؤ کہ وہ ہڈی اتر جائے. یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی چیز کھانے پینے سے چلا جاتا ہے نیچے تو وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ وہ کھانے کی نالی میں پھنسنا زیادہ پرابلمٹک ہے. سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے, اور اس کو ٹریکیا کی کمپریشن ہو سکتی ہے, سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے اسے, اور درد ہو سکتا ہے اس کو چیسٹ کے اندر. تو اگر وہ اسٹامک میں چلا جائے گا تو وہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جائے گا بچہ, تو یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر نہیں چاہتا تو امیڈیٹلی آپ اس کو اینڈوسکوپی پروسیجر کے لیے لائیں گیسٹرونٹولوجسٹ کے پاس, تاکہ امیڈیٹلی وہ نکالا جا سکے, کیونکہ پھر اس سے خطرہ نہیں رہے گا بچے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ بچے تو یہ بتا پاتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نگل گئے ہیں, کچھ بچے نہیں بتا پاتے, یا کوئی بھی ایسی چیز نگل لی ہے, بچوں کو کوئی بھی پرابلم ہو, سمٹمز کیا ہے جس سے ہم پکڑ سکتے ہیں کہ بچے کو کوئی چیز بادر کر رہی ہے؟ ایسا گڈ کوسچن کہ بعض اوقات پتہ ہوتا ہے تو ہمیں آگے بتا دیتے ہیں, نہیں پتہ ہوتا تو ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں بچے کو بہت درد ہو رہا ہے, پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم انیشلی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں شک ہوتا ہے اس کے ایکس رے کروا لیتے ہیں ہم لوگ. تو ایکس رے کے اندر وہ چیز سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. اگر کسی کا کوئی نیل ہے, کوئی پن ہے, کوئی کوائن ہے, کوئی بیٹری ہے, تو وہ ساری چیزیں ایکس رے میں آ جاتی ہیں, ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. تو جہاں پر ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ, کیونکہ یوزلی 6 months to 6 years کے بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایکسیڈنٹل سویلنگ ہو جاتی ہے, سویلنگ کرتے ہیں. جو سویلنگ جو سویلنگ بچے کرتے بھی ہیں, تو اس کو اگر فوری طور پر اینڈوسکوپی کے ذریعے ٹریٹ کر لیا جائے تو آئی تھنک یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. یہ بہت بہتر ہے بچے کے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر واجو وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو یو, اور انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ. شکریہ. اوکے, خدا حافظ. اور اب خواتین و حضرات بات کرتے ہیں کھانے پینے کی. آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک ہے, تو رمضان المبارک میں 2 آپشنز ہوتی ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے گھر دا کھانا اور ایک ہوتا ہے باہر دا کھانا. کیونکہ شفاعت باہر کے کھانے کے پڑے ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو ایک ایسے کھانے کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں جو کہ کراچی میں دن بدن بڑا مشہور چلا ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ وہ جو شیف ہے وہ ایک تو خاتون بھی ہیں, اور بڑی ہمت سے جناب انہوں نے اپنی سوزوکی کے اندر زنگر برگر کی چھوٹی سی شاپ بنا لی ہے. اور یہ زنگر برگر بھی ایسا ہے جو کہ بہت افورڈیبل ہے, بڑا مزیدار ہے, لوگ بڑے مزے سے کھاتے ہیں. پہلے ذرا اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں. محنت میں کوئی یار نہیں. کراچی کے علاقے گرو مندر میں سوزوکی میں ایک برگر شاپ بنائی شریفہ اجاز کھڑی ہیں, جو مزیدار زنگر برگر صرف 100 روپے میں دیتی ہیں. شریفہ کہتی ہیں کہ ان کو شروع میں بہت مشکل پیش آئی. بہت تکلیف ہوئی, کافی بہت تکلیف ہو رہی ہے. جہاں ہم کھڑے ہوتے ہم کو 10 دن کھڑے ہونے دیتے ہیں, ذرا سیٹ اپ ہوتے 10 دن 15 دن وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, میرے ہٹ جاؤ یہاں سے, پھر چلے جاتے ہیں. میں کافی جگہ 6-7 جگہ سے اوکے, پھر میں واپس ادھر ہی آئی ہوں, واپس گرو مندر پہ آئی ہوں. میری اسٹارٹنگ گرو مندر سے ہوئی تھی, واپس میں گرو مندر پہ آئی ہوں 5 مہینے کے بعد. یہاں پر بھی تھوڑے مسئلے کر رہے ہیں, لیکن ابھی میں فائٹ کر رہی ہوں. شریفہ اس بات پر متفق ہیں
कि हर शख्स महंगा बर्गर नहीं खरीद सकता, इसीलिए कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ता जिंगर बर्गर बनाना शुरू कर दिया और क्वालिटी वही जो आप चाहते हैं। खरीदार तो इनके जिंगर बर्गर ही नहीं, बहादुरी और हिम्मत की भी दाद देते हैं। पूरा अशोक दौर के अंदर भी अपने रिस्क के हलाल कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। अल्लाह इसके जज्बे को सलामत रखे। रहा जायके का तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जायका भी अच्छा है और हर चीज़ क्रिस्पी है। कम रेट में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छी है और ताज़ा है, हमारे सामने बन रहा है, सफाई है बहुत माशाल्लाह। मुतवस्सित तबके की शरीफा एजाज एक माँ भी हैं जो घर चलाने के साथ साथ अपने बच्चे की तालीम और तरबियत जारी रखने के लिए भी मेहनत कर रही हैं। अम्मी बिल्कुल ना जज्बे से काम करती हैं कि पूरा घर इन्हीं के हाथ में भी चल रहा है, कि बिल्कुल मेहनत से काम करती है और अपना काम समझ के दिल से करती हैं। सुबह से उठती हैं, लगी रहती हैं, रात के 3-4 बजे तक यहीं पे होती है, काम करती हैं। बस इनका जज्बा देख के बस खुशी होती है कि हमें ऐसी माँ मिली है जिसमें इतना जज्बा है और इतनी पावर है कि दुनिया का सामना कर रही है हमारे लिए ही खड़े होके, हमें पढ़ाने के लिए, हमें तालीम देने के लिए कर रही हैं। एक खातून होने के नाते सड़क पर खड़ी जिंगर बर्गर बनाती शरीफा को अपने और पराए सबकी तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। वो कहती हैं कि घर भर की कफालत के लिए हौसला और हिम्मत बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगी आप हिम्मत करें, आप हिम्मत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करें। दुनिया का सामना करें, आप सामना करेंगे, उनको फेस करेंगी तो कामयाब होंगे। नहीं फेस करेंगी, चाहे वो मर्द हरसाद हो कि औरत हो, फेस नहीं करेगी तो कामयाब कभी नहीं। लोगों की परवाह न करें। अपने और अपने घर वालों के लिए जिद्दोजहद और मेहनत करती शरीफा एजाज अज़्म हिम्मत और बहादुरी की एक आला मिसाल हैं। तो आज हमारे साथ शरीफा एजाज अली साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू शाम रमज़ान। बड़ा कमाल आप काम कर रहे हैं, लोग इतना अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं। शुरू में इतना ही आसान था जितना हमें दिखाई दे रहा है, ये मुश्किल था? बहुत मुश्किल था ये काम करना और यहाँ पर रोड पे खड़े होना बहुत मुश्किल था। मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। स्टार्टिंग तो मेरे हस्बैंड ने की थी। मैं आपसे कहूँगी मेरे हस्बैंड शेफ़ है, उनको अच्छा खाने पीने का बहुत शौक है, उन्होंने कोर्स भी किया, लेकिन फैमिली की वजूहात की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर नहीं सके। फिर हमने पानी का काम कर रहे थे थोड़ा सा, उन्होंने बहुत मेहनत कर करके इनकी सुजुकी बनाई काफ़ी ना। उसके बाद इन्होंने फिर कोरोना की वजह से बहुत मसले हो गए हमारे घर के अंदर, बहुत। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, बहुत मसले हुए। फिर इनको बैक का प्रॉब्लम भी हो गया इनको। फिर हम लोगों ने सोचा दोनों ने मिलकर कि हम क्या करें, घर चलाना है, बच्चों को भी करनी है, क्योंकि मेरे ससुर भी मेरे साथ हैं, वो भी काफ़ी एजिड है। तो फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया हम ये गाड़ी के अंदर अपना काम करेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी को सप्लाई को उसको बेच के हमने उसके अंदर रन करा, इसके अंदर सब सामान तैयार किया, ये करके हमने शुरू किया। पहले हमने गुरु मंदिर से ही शुरू किया था। मैंने स्टार्टिंग हमने 60 से शुरू किया था। उस वक्त मैं कम जाती थी। अरे कब की बात है, कितने से पहले? ये 5 महीने पहले की बात थी। अच्छा, माशाल्लाह से पूरा आपका सफर 5-6 महीने में हुई तभी? जी, ये 5 महीने के अंदर ही सब कुछ हुआ है। तो हिट हो गई बड़ी 5 महीने के अंदर ही। और यहाँ पर आके मैं खड़ी हुई थी अपने हस्बैंड के पास। मैं तकरीबन 8 बजे उनके पास, 7 बजे 8 बजे सब घर का काम करके मैं 8 बजे उनके पास आती थी, उनके साथ हेल्प करती थी, सब करती थी, उनके साथ ही होती थी, वो भी करते थे, मैं भी करती थी। ऐसे कहते जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे 15 दिन के ज़्यादा मुझे कोई खड़े होने नहीं देता। कुछ ये हैं कि गवर्नमेंट को मसला हो जाता है कि गवर्नमेंट का रोड है, कुछ लोगों को मसला हो जाता है, कुछ दुकान वालों को मसला हो जाता है। अगर दुकान वालों के पास भी नहीं होती हूँ तो लोगों को इशू हो जाता है कि एक औरत क्यों खा कर रही है, क्यों कमा रही है यहाँ पर खड़ी होके। वो कहते हैं ना कि अन्ना का मसला हो जाता है, अन्ना का भी मसला, और थोड़ा सा माशरे में की सोच है कि औरत कैसा खड़ी होके यहाँ पर रोड पे कमा रही है। वरना लोगों के जो पथारे हैं वो 10-10 साल से खड़े हैं उनको नहीं, कुछ और नहीं, वो चले जा रहे हैं। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल दुखती रख छेड़ी है आपने। लेकिन चले अब जरा मुझे बताइएगा, अब आप वैसे तो प्राइमरी आपने कहा गुरु मंदिर से शुरू किया, तो अब कितनी लोकेशंस बदल चुकी हैं? मैं कम से कम 5-6 तो मेरी तो हो चुकी। गुरु मंदिर गई, फिर गुरु मंदिर से मैं सोजे बाजार से गुरु मंदिर गई। गुरु मंदिर पे वहाँ पर क्या सोजे बाजार पहले स्टार्टिंग मेरी सोजे बाजार से हुई, फिर मैं गुरु मंदिर पे गई। गुरु मंदिर पे कम से कम 8-10 दिन से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा मिला, कह नहीं सकती मैं, बहुत अच्छा। बस पुलिस वाले आए, मेरे हस्बैंड को ले गए थाने, मैं उस वक्त नहीं थी वहाँ पर। आप देखें तो पंचर वाले ये वाले सब खड़े हैं, सिर्फ ये गाड़ी की वजह से। तुम्हारे शाम रमजान के प्लेटफॉर्म पे भी हमारी दरख्वास्त होती, जहाँ पे थे पथारे भी खड़े होते हैं, ये जो सब खड़े हुए हैं उनको लेकर उनको गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए।
मुझे कहीं आप नहीं लगाओगे, मेरे हस्बैंड को कम नहीं लगाओगे आप यहाँ पर कल से। क्या कोई फरमाइश करते हैं कि जी अच्छा आप इस सूरत पे लगा सकते, कोई कंडीशन नहीं बताते आप? नहीं, कुछ भी नहीं बताते, बस यहाँ नहीं लगाएं, ट्रैफिक का मसला है, वहाँ से सीना हुकूमत से हुआ है कि यहाँ पर नहीं लगाएं, बाहर नहीं करें। अरे थोड़े दिन के बाद वहाँ पर सब लोग दूसरे आ चुके हैं, लेकिन मेरे को अलाउ नहीं है, मैं वहाँ पर गाड़ी ऐसा तो नहीं आपकी वजह से उनकी दुकानें मांग पड़ना शुरू हो गई हैं? नहीं, हो सकता है कि वहाँ पर बड़े बड़े बर्गर वाले भी हैं, उनको भी मसला हो, कुछ ये भी कह सकती हूँ मैं। अच्छा मुझे बताएं तो कितनी काफी बर्गर वाले नामी बर्गर वाले भी हैं जिनकी दुकानें अच्छी खासी चल रही है और मेरी वजह से उनको शायद हो सकता है। बड़ा मशहूर वहाँ पे एक कबाब की दुकान है जिनकी ग्रिल जो है ना वो आधे फुटपाथ तक कवर हुई है। कर रहे सब कर रहे खड़ी हुई है, कर रहे सब पता नहीं मेरे अब्बा के बचपन से खड़ी हुई है, लेकिन कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, लोगों को तो बहुत शौक होता है, अब तो एक तरह से ना फैशन में भी आ गया, ट्रेंड में भी आ गया कि वहाँ से खाना मंगवाएंगे जहाँ पे घर से खाना बन रहा है। तो एक खातून जब लोगों के सामने जिंगर बर्गर बना रही है और वो भी इतने सस्ते दामों में, क्योंकि आप 80 रुपए का भी दे रहे हो, फ्राइज के साथ 100 रुपीज, शावा भी शावत है, बल्ले भी बल्ले, ये तो बड़ी कमाल है, फ्रेश उनकी आंखों के सामने बिल्कुल बना रही है। तो लोग तो अप्रिशिएट भी बड़ा करते होंगे बहुत ज्यादा। और क्योंकि जिस इलाके की आप बात करें तो यहाँ पे तो वैसे भी स्टूडेंट्स ही बहुत रहते हैं, अकेले भी लोग रहते हैं, तो उनकी तो काफी मुश्किलात भी कम हो जाती होंगी। हाँ वो करते बहुत है, लेकिन जो जहाँ मैं खड़ी होते हैं वहाँ पर थोड़ा मसले हैं, बाकी वैसे लोग जो मेरे पास जो भी आते हैं मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर मसला ना हो तो फिर आपने क्या कुछ अपने इस पूरे एक्सपीरियंस से सीखा और आगे का प्लान क्या रखती हैं आप? मैं तो कहती हूँ कि अगर औरतें जो करना चाहती है ना, उनके दिल में जज्बा हो, उनको हस्बैंड इनका साथ दे। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ी होती। रिश्तेदार आते हैं आपसे बर्गर खाने के लिए? हाँ रिश्तेदार तो अभी तक कोई नहीं आए हैं, लेकिन मैं चले जाते हैं। अब उनसे मैं कुछ भी नहीं कह सकती, में अपने फैमिली मैटर तो आप पता है आपको। चले जिस दिन कामयाब होंगी ना उस दिन सारे रिश्तेदार साथ खड़े होंगे। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे शर्म नहीं है। मेरे हस्बैंड को मुझे फकर है, मेरे हस्बैंड को मेरे पर बहुत फकर है। हमें भी आप पे बहुत ठीक है, उनको फकर है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे किसी चीज का दुख नहीं है। चाहे आप कुछ बड़ा कर रही हैं, तभी आज आप माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आप कुछ बड़ा कर रही हैं। आप लोग की दुआ है, मुझे अपना नाम नहीं कमाना, मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरी जो दुकान है वो चल पड़े और मैं अपने बच्चों के लिए कर सकूँ। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ शरीफा एजाज साहिबा मौजूद है और अभी हम आपके सोचनाक खबर ये शेयर करें कि हरारे में जो आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 का मैच हो रहा था, उसमें जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। जी जनाब, मैंने आपको जैसे कहा ना मैच फंस गया जी, तो जनाब पाकिस्तान की टीम 99 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। जी जनाब, पाकिस्तान की टीम 99 रन पे ऑल आउट हो गई, जबकि जीतने के लिए जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को महज 119 रन का टारगेट दिया था। आप देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तानी टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं कहीं हम न्यूजीलैंड, कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया, हम साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बीट कर देते हैं और कहीं कहीं हम देखते हैं कि हमें जिम्बाब्वे भी जो है ये भी मात दे देता है, वो भी T20, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें हमें मुहारत हासिल है। जी जनाब, एक इंतहाई जो आप देख रहे हैं, एक नपतुल्ला बॉलर मुजर रब्बानी, जिसकी बॉलिंग पे आपने ये रन आउट का मंजर देखा, इसके बाद आपके सामने बात साबित हो गई है कि पाकिस्तानी टीम, जैसे मदिया ने कहा, दुनिया की सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम साबित हुई। पहला वनडे भी बड़े कन्नी जीते थे, पहला T20 कन्नी जीते थे, लेकिन दूसरा T20 तो कमाल ही हो गया। पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे से 99 रन बना के ऑल आउट होने के बाद दूसरा T20 हार चुकी है 119 रन का, महज 119 रन का जनाब जिम्बाब्वे की जानब से टारगेट। जी, और इसी वाले से बात करेंगे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? रोते हैं छम छम नैन ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की टीम को कोई वायरस है, बैटिंग का वायरस है, और वही वायरस आज ऊद कर आया दोबारा। जब 119 का टारगेट मिला था तो ऐसा लग रहा था जैसे आसानी से बना लेगी, लेकिन विकेट स्लो साइड पे थी, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं थी कि बाबर आजम ने 45 गेंदें खेलकर 41 बनाए। बाबर और रिजवान, जब भी ऊपर से कोई एक जल्दी आउट होगा तो पाकिस्तान की बैटिंग का यही हशर हो रहा है। आज रिजवान 13 रन पर आउट हुए, बाबर ने फिर भी कोशिश की लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया। हफीज 2, आसिफ अली 1, फखर 5, इस तरह कर करके सारे मुसलसल 29वें मैच में आसिफ अली नाकाम हुआ। हाँ, शायद अब लग रहा है कि आसिफ अली अब पाकिस्तान की शायद शर्ट में शायद नजर ना आए। बहुत बड़ा कभी कोई वो डोमेस्टिक में करें तो, लेकिन अब सर बाकी बातें छोड़ें, एक शॉर्ट पिच बॉल थी जो पूरी जिम्बाब्वे की टीम मिलके करा रही थी। यहाँ पे वो सामने बड़ी स्क्रीन पे मैच हल्का फुल्का नजर भी आ रहा था, मैं कन्नी आंखों से देख भी रहा था, लेकिन कोई प्लेयर उसको खेलने को तैयार नहीं था। पहले T20 में भी यही हुआ, इस बार भी यही हुआ। उन्होंने बड़ी फाइट की, हालांकि पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा एक फंसाया था पाकिस्तान को,
लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की। इतना कम टोटल, ये पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल है जो पाकिस्तान चेज नहीं कर सका। इससे पहले 128 का टारगेट था 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान चेज करने में नाकाम हुआ था। ये लोएस्ट टारगेट है जो पाकिस्तान चेज नहीं कर हाशिम सका। साहब क्या क्या प्रेडिक्शन सुन रहे थे जब टीम वहां पे पहुंची थी? तो कहा जा रहा था कि जिम्बाब्वे को तख्ता मश्क बनाने के लिए पाकिस्तानी की शाहीन जो है वो पहुंच गए। ये शाहीनों को पकड़ के उन्होंने लपेट दिए। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा था कि किसी भी टीम को T20 में आप आराम से नहीं ले सकते। किसी ने कहा वॉक इन द पार्क, किसी ने कहा प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को, किसी ने कहा आंखें बंद करके खेलें। T20 है कैसा, हमें बड़ी महारत हासिल, लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल किस्म की टीम है। कल हमारे प्रोग्राम में फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद ने बड़ी अच्छी बात की थी, कोर्ट ऑफ द ईयर मैं कहूँगा उसे। उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम अपने हरीफ जैसा खेल खेलती है, अगर वो बुरा हरीफ है तो बुरा खेलेगी, अच्छा हरीफ है तो अच्छा खेलेगी। और वाकई बात बिल्कुल दुरुस्त साबित ये वाकया सलाम है शब्बीर साहब। क्या बात है शब्बीर भाई को। सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे अल्फाज। मुझे अब ये बताइएगा, मूसा रब्बानी एक बिल्कुल नए किस्म के प्लेयर सामने आए हैं, ऊंचे लंबे प्लेयर, बाउंसर कराया, टीम नहीं खेल सकी। उनके बाकी मसाकाजा वगैरह जितने प्लेयर्स, जोंगवे ने आज उनके 4 आउट किए। लोग जोंगवे ने 4 आउट किए हैं, जो जूता उतार के फिर वो सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। जी, तो वो ऑलराउंडर है, वो काफी अरसे बाद इसमें हमने कुछ सीखा है, कुछ वेकअप कॉल आई है टीम की मैनेजमेंट को कि देयर इज नो मिडिल ऑर्डर एग्जिस्टिंग। अब 2 प्लेयर्स पे डिपेंड हम सीख नहीं रहे, हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि कैसे हमसे जीता जाए। पूरा बैटिंग पाकिस्तान की 2 प्लेयर्स के ऊपर मौजूद है। अगर वो 2 प्लेयर चल गए और तीसरा वाकई बड़ा शॉकिंग है। और अब वो लोग जो सारे क्रेडिट ले रहे थे कि हमने ये टीम सेलेक्ट कर दी और वो टीम सेलेक्ट कर दी, अब उनको सोचना पड़ेगा। फखर के अलावा वी हैव नो अदर मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह एक्सपोज हुआ। लेकिन आज मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज नवाज को क्यों बिठाया। नवाज वो प्लेयर है जिसने आपको आखिरी T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओवर में जाके निकाल के दिया था मैच, और वो स्लो अच्छी बॉलिंग भी करा रहा है। जब एक स्लो पिच है, स्लो साइड पे पिच है, तो आप क्यों स्पिनर को, जिसने इस पूरी सीरीज में साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी अच्छी बॉलिंग की है, अजीब फैसले होते हैं। अब आसिफ अली को अगर इस मैच में लाना था, आसिफ अली 30 साल के नहीं सीख रहे वो, तो आप एक ऐसे लड़के को सिखाएं जो फेल भी हो। 20 साल का लड़का हैदर अली, अगर वो फेल भी हो तो कम से कम सीखेगा। यहाँ पे देखा फैसले का भी थोड़ा बहुत देखा कि कहीं ना कहीं फुकतान भी था, लेकिन साथ में आपको ऐसा नहीं लगता कि मे बी हमारी टीम का मोराल कोई बहुत ज्यादा था? मे बी दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि हम बड़ी से बड़ी टीमों को हरा के आ गए, तो जिम्बाब्वे टीम क्या होगी हमारे सामने? इनकंसिस्टेंसी तो है पाकिस्तान की टीम में कि एक सीरीज जीतते हैं और एकदम थोड़ा सा कंडीशंस का भी फर्क है। साउथ अफ्रीका की पिचें थोड़ी बाउंसी होती हैं, बैट पे बॉल अच्छा आ रहा होता है। जिम्बाब्वे की विकेटें थोड़ी स्लो साइड पे हैं, गर्मी भी हल्की सी है, तो उस वजह से पिचें इतनी अच्छी नहीं है। स्लो पिच थी, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है। 119 रन का टारगेट ना बनाना पाकिस्तान के लिए बड़ा शॉकिंग है। और अब टीम मैनेजमेंट को बड़ा देखना पड़ेगा। संडे को आखिरी मैच है, अगर कहीं हम ये सीरीज हार गए, 6 महीने रह गए T20 के वर्ल्ड कप में, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम अच्छा। और ये भी मुझे बताइएगा, जो भारत की जो सिचुएशन चली, जिस तरीके से वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बाकी बहुत सारी टीम्स ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि भाई नवंबर और अक्टूबर में पॉसिबल नहीं है। आपको होता हुआ लग रहा है कि वहाँ पे T20 का वर्ल्ड कप होगा भारत में? और बहुत से लोग, ये भी मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जून में 4-4, 5-5 लाख हो जाएंगे फिगर इंडिया में। क्योंकि अभी टीम में जाना था, उसको रोक लिया ना, आईसीसी की टीम को भी रोक लिया गया जिन्होंने सब पे जाना था। उन्होंने जाके रैकी करनी थी वहाँ पे, वेन्यूज की भी, मेडिकल फैसिलिटीज की भी, तो वो भी अगर आगे डिले हो जाएगा तो लग रहा है कि या तो ये टूर्नामेंट और आगे चला जाएगा या ऑल्टरनेट वेन्यू यूएई है तो यूएई में हो जाए। अब ऑस्ट्रेलिया वाले ये भी जोर लगा रहे हैं कि ये टूर्नामेंट हमें वापस दे दें, इसलिए कि उनके यहाँ तो कोविड इतना नहीं है जितना आज पर्थ में कुछ ऐसे 1-2-4 सीन आए जिसमें लॉकडाउन लगाया उन्होंने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी सेफ है, न्यूजीलैंड सेफ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा रीजन भी देखना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप भी देखनी पड़ेगी, तो मुश्किल फैसला होगा। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं हुई तो यूएई शिफ्ट हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ शाहिद हाशमी मौजूद थे और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार गई, 99 रन पे ऑल आउट हो गई, अंडर 100। बहुत अजीबोगरीब बात है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। शाम रमज़ान में अहम खबर शेयर करते चले जनाब। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की समत में तब्दीली का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब रिंग रोड प्रोजेक्ट में मुबैना तब्दीली की तहकीकात कराएं। ज़राए कहते हैं कि रिंग रोड में मुबैना तब्दीली बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई। तब्दीली से रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में इजाफी 25 अरब रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी रिंग रोड की रिअलॉटमेंट चौड़ाई में तब्दीली बास अनासर की इमा पर की गई। रावलपिंडी रिंग रोड सम तब्दीली में
चंद 62 सियासतदान मुफाद परस्त ग्रुप मुलव्वस हैं। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चले, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा जब इनिशियली बनाया गया तो उसका नक्शा कुछ और था, फिर बाद में नक्शे की समत तब्दील की गई, रिंग रोड का डिज़ाइन तब्दील किया गया, जिससे लागत भी बढ़ी और ज़राए के मुताबिक कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया गया। अब ज़राए के मुताबिक खबर ये आ रही है कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का कुल तखमीना इब्तदाई तौर पे 40 अरब रुपया था, जो कि अब इस रीअलाइनमेंट के बाद 65 अरब रुपए के लगभग हो जाएगा। बिल्कुल जी, 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 40 अरब रुपए है और रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में तब्दीली से मजमूई तौर पर जो लागत है वो 65 अरब रुपए हो जाएगी। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को ओरिजिनल प्लान में तब्दीली की तहकीकात का हुक्म दिया गया है और इंक्वायरी से पता चलेगा कि तब्दीली किसके कहने पर की गई और इससे किसको फ़ायदा होगा। इंक्वायरी में जिम्मेदार साबित होने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये तो जनाब हमने आपके सामने शेयर कर दी रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से एक बड़ी खबर, क्योंकि हर हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में पॉपअप होती है और कहती है जी यहाँ से रिंग रोड गुजरने वाली है। बंदा कहता है भाई एक रिंग रोड है, कहाँ से जा रही है। इसी वजह से अब नोटिस लिया गया है कि कहाँ से रिंग रोड जाएगी, किसके कहने पर किया गया, कौन सियासी खानदान या सियासतदान मुलव्विस है इस रिंग रोड की रीअलाइनमेंट में। अब आपको जरा खाने पीने की बात करें दोबारा। बिल्कुल, क्योंकि हम रोज़ आपको कोई ना कोई कैसी रेसिपी ज़रूर बता रहे हैं जिससे आपको जो रमज़ान है ना काफ़ी ज़रा सुकून में भी गुजरेगा। बड़ी अच्छी, बड़ी हेल्दी और बड़ी क्विक किस्म की, झटपट किस्म के हम आपको डिशेस बता रहे हैं। और आज तो हम आपको बता रहे हैं कबाब बनाने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका, और रशियन कबाब है जी। रशियन कबाब, रशियन कबाब, आप समझे स्पटनिक कबाब आपको खिला रहे हैं। तो क्या है जनाब ये रशियन कबाब, आपको बताते हैं। आज की हमारी रेसिपी है रशियन कबाब। गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, बॉइल्ड आलू 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, चिकन 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, काली मिर्च 1 टेबल स्पून। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके कबाब बनाकर अंडे में डिप करेंगे। क्रश की हुई सेवइयों में कोट करेंगे। कबाब को फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हो गए हमारे रशियन कबाब तैयार। हो गए जी, हमारे रशियन कबाब तैयार हो गए, देख लिया आपने। तो अब यहाँ पे ब्रेक ले लें। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम यूं गए यूं वापस आए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अब शाम रमज़ान में बात कर लेते हैं थोड़ा मौसम के हवाले से। पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो कहीं भी मौसम एक जैसा नहीं है। कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद में यालाबारी पड़ी, लाहौर में कल गरज चमक के साथ बारिश हुई, ठंडी ठंडी हवाएं चली, आंधी चली। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम कराची का रुख करते हैं तो कराची में मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है। उल्टा कराची में तो 2 दिन के लिए हीट वेव की प्रेडिक्शन भी कर दी गई है। यानी अगर आप मुल्क के शुमाल से मुल्क के जनूब की तरफ आएंगे तो आपको सरसाम हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ वावा ठंड और एक तरफ वावा गर्मी पड़ रही है। कराची की जहाँ तक बात है तो कराची में समुद्री हवाएं रुक गई हैं, थोड़ा सा हब्स की कैफियत भी है और गर्मी अपना बता रही है कि भाईजान हेलो किधर जा रहे थे आप, अप्रैल है, आप लोगों को ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला थे। तो महकमा मौसमियात ने भी कह दिया जनाब 23 से लेकर 25 अप्रैल के दौरान कराची में
गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और दिन में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रह सकता है। बिल्कुल जी, और जबकि दिन के औकात में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए आप लोगों ने रखना है अपना बहुत ख्याल। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो ऑफिस के डायरेक्टर सरदार साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि आज से कराची में एक नई हीट वेव की प्रेडिक्शन की गई है, पेशगोई की गई है। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, क्या सूरत हाल रहेगी इन 3 दिन? देखिए, हीट वेव नहीं है ये, इसलिए कि हीट वेव की जो डेफिनेशन वाइज हम उसको हीट वेव का नाम देते हैं, तो 5 दिन तक मुसलसल जो किसी महीने का एवरेज टेम्परेचर होता है उससे 5 डिग्री ऊपर हो या 40 से ऊपर जाए मुसलसल 5 दिन तक, तो हीट वेव का नाम दिया जाता है। ये चूँकि 3 दिन निस्बतन गर्म मौसम है, जैसे कि पिछले दिनों रमज़ान जब से शुरू है और उसके पिछले 1 आध हफ्ते उससे पहले भी बेहतर रह रहा है टेम्परेचर। कराची का 35-36 इस रेंज में रह रहा था। और ये जो 3 दिन है इसमें 38, 39 और 40, परसों खासकर इतवार के दिन 40 तक भी जा सकता है। आज तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर चल रहा है अभी तक, अभी टेम्परेचर 37 हो गया है और नमी उसमें 35 से 40% है। लेकिन कल और परसों दोनों निस्बतन ड्राई होंगे, हॉट एंड ड्राई वेदर होगा, तो उसमें 39-40 की रेंज में ये जाएगा टेम्परेचर। तो 3 दिन का स्पेल है, उससे मतलब कोई हीट वेव नहीं है प्रॉपर, और कोई प्रॉपर हीट वेव नहीं है। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से हमें आगाही देने के लिए। लेकिन खैर मैं इनसे यहाँ पे कुछ मजीद सवालात भी जुड़ गए, तो वो पूछना ज़रूरी है कि बालाई इलाकों में हमने देखा है कि झालाबारी और बारिश के बाद मौसम ठंडा हुआ है, तो बारिशों का सिलसिला अब कब तक जारी रहेगा? आज तक है, आज शाम तक है सिलसिला वहाँ पर, और फिर ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये कि उसमें गैप आएगा अगले फिर 4-5 दिन, कोई ऐसा ख़ास स्पेल नहीं है। इक्का दुक्का हो सकते हैं, जैसे शुमाली बलूचिस्तान और जो केपी के वेस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर इक्का दुक्का सेल्स बन सकते हैं, कहीं की वेदर हो सकता है। लेकिन जो ये मेजर स्पेल चल रहा था जिसके नतीजे में वहाँ पर आंधी और गरज चमक के समय बारिश और यालाबारी भी हुई खासी जगहों पर हुई, तो ये सिलसिला आज शाम तक है। अच्छा सरदार साहब, लेकिन जो सेंट्रल पंजाब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, यालाबारी भी हो रही है, गरज चमक के साथ भी हो रही है, तो वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो गंदम की तैयार फसल अभी खड़ी हुई है उसको भी इससे नुकसान पहुँच सकता है। देखिए, सेंट्रल पंजाब में कल तो जो बारिश हुई है, और मेरे ख्याल में आज वहाँ नहीं होगी इतनी, कोई इक्का दुक्का जगह किसी जगह पे हो, क्योंकि अब ये जो बारिश का बायस बनने वाली मगरबी हवाओं का सिलसिला था, ये सेंट्रल पंजाब से होता हुआ नॉर्थ पंजाब और फिर इस वक्त नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर प्रिवेल कर रहे हैं। यानी आपका कश्मीर का इलाका और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट पंजाब का जो इलाका है, और फिर ऊपर GBVB साइड, उन एरियाज़ में आज बारिश का ज़्यादा इम्कान है। सेंट्रल पंजाब से तकरीबन ओवर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रो ऑफिस कराची मौजूद थे, जो बता रहे थे क्या सूरत हाल है। अब जनाब, हमने जैसे कि आपके सामने बात की थी कुछ दिन पहले भी कि जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं वो उनका रोज़ा बेचारों का सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और उनका इफ्तार जो है ना वो भी सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होता है, क्योंकि सब लोग तो अपने अपने घरों को जा चुके होते हैं। तो इस माह सयाम में जनाब इस हालत से इन जो पुलिस वाले हैं जो कि सबसे आगे बड़ा होते हैं, मुश्किल होता है, क्योंकि रोजेदार जो है ना, जब जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता है, हम देखते हैं कि सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो किस कदर क्रेजी हो जाती है, बड़ी तेजी से ट्रैफिक भी चल रही होती है। तो जो लाहौर का अगर हम रुख करें, तो लाहौर में जो पंजाब पुलिस है, जिस तरीके से उनके जवान शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इन तमाम तर ड्यूटीज़ के दौरान वो इफ्तारी कैसे करते हैं, हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर बता रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बाबू साबू पर, और अगर शहर को महफूज देखना है, शहर को महफूज बनाना है, तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी होती है वो दाखिली खारजी रास्तों की बेहतर बनानी होती है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में लाहौर शहर को महफूज बनाने के लिए जो लाहौर पुलिस के जवान हैं वो किस तरह अपने पुरजोश हैं और जज्बे से सरशार हैं। लाहौर पुलिस के जो जवान हैं आवाम की खिदमत के लिए और लाहौर शहर को महफूज बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अफ्तारी ये किस तरह करते हैं सड़क के किनारे पे खड़े होके, आज हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये ओपन एयर है बिल्कुल, यहाँ पर कोई ऐसी छाँव नहीं है कि आप अगर धूप आए तो आप उसके नीचे आ जाएं। और इसी तरह पूरा दिन जो है लाहौर पुलिस के ये जवान इस तरह धूप में खड़े होके रोज़े की हालत में अपनी खिदमात जो है वो सारे अंजाम दे रहे होते हैं। बताइएगा बड़ा बहुत शुक्रिया आमिर खोकर इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का। ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त चाहने का। शाद रही आबाद रही, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen